Wish you all a very good day and God's many blessings as we begin this day. Friends, here is something that I'd like to share with you this morning, and that's taken from St. John's Gospel, chapter 14 and verses 15 and 16, where Jesus says to his disciples, "If you love me, you will obey my commandments. I will ask the Father, and he will give you another helper who will stay with you forever." Now, the point that we must understand as we begin this day is that Jesus is promising to gift the Holy Spirit or to send the greater helper, and he puts a precondition, and that is the obedience to the commandments. And that is possible, according to Jesus, is only if we really love him. Now let's put ourselves in a position where we seldom offend people whom we love. We would always abide by their preferences, their choices, their liking, and we would always wear something that is pleasing to them. Perhaps the hairstyle of their choice, the colors we wear of their choice, the things that we say according to what pleases them. Why not with Jesus? Then during this relationship, what is it that really prompts us to do things that offend the Spirit of God? And if we are busy offending Jesus, we are, in other words, telling him that we don't love you, because obedience and love for Jesus go hand in hand, in a sense that Jesus has put it very plainly: if you love me, you will obey my commandments. The second thing I would like all of us to ponder upon is that this greater helper, for whom Jesus promises to pray to the Heavenly Father to send the helper that will be with them forever, is applicable on those who have really done what is required: obedience to his commandments, love for him. And if there is a contradiction between the two, I'm sure this promised helper is unlikely to come. Yet, strange enough, many continue to claim they have this greater helper, perhaps because of his mercy, his kindness, his forgiving nature, that they are privileged to have the greater helper. But then, let's not forget our own responsibility to be serious followers of Jesus Christ, to express our love for him, to assure him that because you love us, because you have given us the greater helper, we in turn are trying our level best to obey your commandments. If that happens, I tell you, the Spirit of Jesus will be delighted. The environment on this planet will change. There will be love, love, and love. With our brothers and sisters, as we address him as our Father daily in our Lord's Prayer, we would really learn what it means. God bless us. Amen. आप सबको आज का दिन मुबारक। जब हम इस जीवन के पर्व को मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जिंदों की दुनिया में कायम रखा है। दो बातों पर हम गौर करें, और वो है जो हमें
यूहन्ना की अंजील के 14 अध्याय के 15 और 16 पद में मिलते हैं, जहाँ प्रभु यीशु ये कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे या उसका पालन करोगे, और इसके बदले में मैं अपने पिता से अनुरोध करूँगा कि वो तुम्हें सहायक भेजे जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आज एक नई तरह की नस्ल देखने को मिलती है मसीहों में, और वो ये कहते हैं कि ना तो हम उसके हुक्म को मानते हैं, लेकिन ज़बान से तुझे प्यार करते हैं का इजहार करते रहते हैं। और साथ साथ में ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वो कहते हैं कि हमें वो सहायक मिल गया, और हो सकता है कि अनुग्रहकारी परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया हो, क्षमा करने वाला पिता है, परमेश्वर है, उसने ये सहायक उनको अवश्य दिया होगा। मैं इस बात से को नकार नहीं रहा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं और आप, जिनको प्रभु यीशु बड़े स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि इसके लिए तो एक कंडीशन है कि मेरे और आपकी आज्ञाकारिता उसके हुक्मों के प्रति, यदि वो ना हो और फिर भी पिता के पास जाकर प्रभु यीशु कह रहे हैं इन सब गलत लोगों को ये सहायक दे दो, मुझे लगता है थोड़ा सा असंभव बात है। परमेश्वर अपने ही वचन को कैसे नकारेगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, ये सोचने की बात है। और अगर हम इन रहस्यों को नहीं समझ रहे तो शायद हम किसी न किसी तरीके से एक ऐसे मसीह हैं जिन्होंने इस ज़िंदगी का आनंद तो ले लिया, उसकी आशीषों को पा लिया, लेकिन ना शुक्रे निकले, अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। और मेरा आज अनुरोध है कि जब हम इस जीवन के पर्व में लगता है मगन हो जाएंगे, बड़ी आशीषें देगा, बहुत अच्छा दिन निकलेगा, लेकिन इस चमक धमक में कहीं अपनी जिम्मेदारी को ना भूल जाएं। और मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। दूसरी चीज़ याद रखें कि उसने मुझे और आपको जो आज्ञाएं दी हैं वो ऐसी अद्भुत हैं जिससे शांति और प्रेम इस संसार में कायम हो सकता है, उसका राज्य इस धरती पर कायम या स्थापित हो सकता है। उसके लिए उसने कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो एक तो प्रमाण दोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, दूसरी चीज़ यह है कि मेरी भी अंदर एक ऐसी उत्सुकता आएगी कि मैं पिता को कहूँगा इनको सहायक दीजिए, क्योंकि अब मैं आत्मा के रूप में उनके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं का पालन करते जा रहे हैं। इनको हक है कि ये लावारिस ना हो। इस नज़रिए से यदि हम प्रभु के प्रेम को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को अपने आप को याद कराता हूँ कि हमारी जो प्रतिदिन की प्रार्थना है, ये हमारे बाप, और ये यदि हमारा बाप पिता है, स्वर्गीय पिता है, और हम इस धरती पर उसके बच्चे हैं, तो यहाँ पर तो भाईचारा, प्रेम 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 से धरती भर जाए और ऐसा आनंदमय जीवन हो जहाँ किसी के दिल में दूसरे के लिए ना तो बैर हो, ना घृणा हो, ना नफ़रत हो, और ना किसी प्रकार के ये जो हम सिलसिलों में उलझे रहते हैं कि इसका मैं कैसे नुकसान करूँगा, ये सब रक्त हो जाना चाहिए। और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने प्यार का इजहार उसकी आज्ञाओं को पालन करके साबित कर दें। और इस वादे के अनुसार लाजमी बात है कि प्रभु यीशु अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे, और ये सहायक हमें वास्तव में मिलेगा, और हम इसका जो अकेलापन, जो हम अब कभी कभी मायूस हो जाते हैं, ये बिल्कुल दूर हो जाएगा, और जीवन के अंदर एक हमें अलग सिक्योरिटी महसूस होगी। आमीन।